cognitive development or academic development is not only the sole aim of education. The aim of education should be holistic development. When we say holistic development, it includes your emotional development, it includes your social development, it includes your spiritual development. And I think C-learning focuses on all these aspects. पहले जो हमारा ट्रेडिशनल करिकुलम था तो उसमें मेनली फोकस किया जाता था रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल्स पे या लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे, बट उन चीज़ों से बच्चों के कुछ गोल्स फुलफिल नहीं हो पा रहे थे. The experiences that children get in their classrooms are things like, bullying, things like gender discrimination, things like, caste system actually which is existing in the society comes inside, or religious differentiations in the society comes inside the classroom. These are things that they experience in the school and classroom. This exists. Yeah. Now, this cannot be solved by training teachers or training people in the system just on how to teach maths and how to teach science and how to teach language. If you see the context of Jammu and Kashmir, you say it had remained a trouble-torn state. I think this program, which is C-learning program, is very context-specific. It is needed in states like Jammu and Kashmir. Our modern education for the last several hundred years actually has pretty much neglected this emotional intelligence. गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही उनका जो बैकग्राउंड है ना, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग्स है, फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस है, मार पिटाई बहुत होती है, तो बच्चे जो है ना बड़े सबमिसिव हैं. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो लड़के हैं इनके वो सारे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और जिनकी लड़कियाँ हैं 2-3 या कुछ, वो सारे गवर्नमेंट स्कूल में. उनका यही मिसकंसेप्शन है कि जो गर्ल्स हैं वो पढ़ के क्या करेंगी, फिर घर ही संभालना है, और लड़के अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेंगे तो कुछ करके दिखाएंगे या कुछ. लेकिन ये काउंसलिंग के थ्रू, सी लर्निंग के थ्रू हमने ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, उस पे भी इस काम करा कि लड़के लड़की एक समान हैं. तो DSCJ ने पिरामिडल फाउंडेशन के साथ एक कोलैबोरेशन करके एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया. 70 टीचर्स को अराउंड 10 डिवीजन्स ऑफ जम्मू जो है वहाँ से उन टीचर्स को लिया है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जिसमें हमें सिखाया गया कि सोशल, इमोशनल, एथिकल लर्निंग बेसिकली है क्या. And initially we realized that this is not everybody's cup of tea to deliver such things. We need role models for compassion, we need role models for well-being, we need people who are very good in counseling skills, in training skills. For that we publicize this program to a larger extent. What happened in that program? Self-motivated teachers self-nominated. So we didn't select. They self-nominated that we want this training. So we chose out of 200 plus people, we chose 70 odd people. A lot of our work is around personal transformation. We do through our work in education is to bring about these things into existence inside the school system. Key belief is that if each person in the system, including parents and including people in the society, if each of these people change, then the culture of personal transformation and the culture of good humanity that will be created because of that will actually trickle down and reach children. एक एक्टिविटी करवाई है, माइंडफुलनेस की एक्टिविटी, जिसके तहत हमने क्या किया है, बच्चों को एक हाथ पे फ्लोर बना दिया और एक हाथ पे हमने कैंडल बना दिया. तो फ्लोर की फ्रेगनेंस हमने बच्चों को बोला है कि ये मेडिटेशन करना, आइज़ क्लोज करके आपने सपोज करना है कि आपके हाथ में फ्लोर है और उसकी आप खुशबू ले रहे हो, तो आपको वो इनहेल करना है, और दूसरे हाथ पे आपने कैंडल सपोज करना है तो आपने उसको ब्लो करना है. तो वो इनहेल एंड एक्सहेल की एक्टिविटी करवाई है, जिसके एंड पे फिर मैंने बच्चों से पूछा है कि आपने कैसा फील करा, और बच्चे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा रिलैक्स्ड फील करा उन्होंने. जैसे जो भी उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है या कुछ भी, तो कहते हैं जब ये एक्टिविटी करते हैं तो हम एकदम काम डाउन हो जाते हैं. हम स्कूल में थे, हमारे पास पेरेंट्स आए तो कहते हैं मैडम हमने सुना है कि आप
कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाती हैं, हमारा बच्चा बड़ा खुश रहता है। और एक दिन मैडम ने कहा कि अपना हाथ जो है उसको एक पेपर पर ड्रॉ करो और अपनी स्ट्रेंथ लिखो कि मेरी क्या क्या ताकत है। तो बच्चे ने मुझे बताया कि मैडम कि मुझे सोचने में बड़ा टाइम लगा कि मेरी 5 ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो मैंने कहा बच्चे ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप भी ड्रॉ करो? बोलता हाँ मुझे भी बोला था, उसने मुझसे करवाया ड्रॉ। मुझे लगता है सी लर्निंग से हमने ये सीखा है कि गुड लिसनर कैसे बनना है, कि कोई भी बच्चे की प्रॉब्लम है हमें आके उसको डांटना नहीं है कि आपने ये काम नहीं किया। उसको पहले समझो कि बच्चे का रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं काम कर रहा है, किस वजह से वो ऐसा फील कर रहा है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो सी लर्निंग से हमने बहुत चीज़ें ये सीखी कि बच्चों के लिए क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। सी लर्निंग जो है ना, सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग एक मिसिंग पार्ट हो गया है आज की तारीख में। हम ऐसे बोलते हैं ना कि गरीब है, पैसे से बोलते हैं इसको, पैसा नहीं है तो वो गरीब है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को अपनी भावनाओं को नहीं समझा पाते हो या आप किसी सामने वाले की भावना को नहीं समझ पाते हो, यदि हम में समानुभूति का अभाव है तो भी हम गरीब हैं। क्योंकि आप ये बेसिकली उसी पे सारा सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग है कि बच्चों को हम देख रहे हैं, आपने मोबाइल देख एक इंटेलिजेंट बच्चा तो आप तैयार कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर भूल गए हो कि बच्चे को खाली उसके परसेंटेज से नहीं जांचा जा सकता है। जीवन में आने वाली मुसीबतों का वो कैसे सामना करेगा, इसको भी तो देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भावनाओं की जहाँ बात आती है, जब आप समझा पाते हो और समझ पाते हो, मीन्स आप लकी हो, यू आर ब्लेस्ड, ये मैं मानती हूँ।